Good evening, class. Today we are going to discuss about Java syntax, how we can write a program in Java by the help of different syntax. MCA Java programming, MCA Java programming, syntax, MCA Java programming. टॉपिक क्या है विकास? टॉपिक क्या है बताइए? Syntax of Java programming. जावा सिंटैक्स. क्या टॉपिक है? Java. एमसीए जावा प्रोग्रामिंग, टॉपिक है जावा सिंटैक्स. देखिए एक क्लास, सिंटैक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ वी विल स्पीक विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी नीड सिंटैक्स. हमें सिंटैक्स की जरूरत है. विदाउट सिंटैक्स वी कैन नॉट राइट कोड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग करना पॉसिबल नहीं. आइदर वह सी की बात करें या C++ की बात करें या .NET की बात करें या PHP, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मींस एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज must have a specific syntax. Right now we are going to take an example. So first of all we will write Java syntax. Write down Java syntax. Java syntax is classified. Java syntax is classified into following types. Okay class, first syntax क्या है? जिसे we can say predefined syntax. What we will speak? This is a predefined syntax in Java. Predefined syntax in Java. And second, user defined यानी कि यूजर भी डिफाइन करता है. जावा में एक और चीज है, जावा सिंटैक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग वी मस्ट नो अबाउट सम कीवर्ड्स. हमें कुछ कीवर्ड्स को जानने की जरूरत है. विकास, कैन यू एक्सप्लेन ये कीवर्ड्स होते क्या हैं? Keyword are the pre-reserved word that by the programmer or compiler. यानी कीवर्ड्स क्या होता है? That means we can say this is a dictionary कहिए. This is एक you can say कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कीवर्ड्स होता है. वह कीवर्ड्स which have defined, जो डिफाइन किया हुआ है, and in any circumstances without the help of keywords you cannot write any program in Java program. Java ही नहीं, if we will talk about the Python, .NET, PHP, C, C++, etc. we need keywords. हमें keywords की जरूरत है. वह keywords system.out, println, public, private कुछ भी हो सकते हैं. keywords एक रिलेटेड नहीं करता है, कोई एक डेटा टाइप है, क्या वो एक फंक्शंस है या एक मेथड है, व्हाटएवर. keywords होता है. So right now do you have note down? Yes sir. Can I read? Yes. एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोडिंग एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल ले रहा है, जावा प्रोग्राम ले रहे हैं. राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ जावा प्रोग्राम, और प्रोग्रामिंग की मदद से, जावा कोडिंग की मदद से we will try to understand the concept of syntax as well as keywords. Okay, so first of all
मैंने कल बताया था स्टेप 1 में क्या करेंगे, बिकॉज इन स्टेप फर्स्ट व्हाट वी विल डू, create a new file with .java extension. Yes or no? Step 1, create a new file. Create a new file with .java extension. Yes or no, class? Like this, इस तरीके से we will see. Yes or no? Here we will write pix.java. Yes or no? Can we write or not write? Yes, sir. Of course we can. Class pix. ये क्या है? क्लास के कीवर्ड्स. Yes, बट क्या pix कीवर्ड्स है? एक फाइल नेम, सॉरी एक नेम है. Class public static void main. Public static void main. Public static void main. String args. Public static void main string. Yes or no? Class. Here we will speak public को क्या बोलते हैं, because in previous lecture already I have explained what access modifier. access specifier, modifier, access control, access specifier, static को क्या बोलेंगे, what we will speak about the static. Access qualifier. In previous lecture already I have discussed about of this access qualifier and void क्या है हमारा, Return type. रिटर्न टाइप. रिटर्न डेटा टाइप कर सकते हैं इसे या रिटर्न टाइप करेंगे. Data type. Can we say void is a data type? Yes. Yes, absolutely. Absolutely, this is a data type, but which data type? Return data. Sir, no return होगा इसका. Sorry, Void कोई return करता ही नहीं. void return data type. Yes, sir. हम इसे कभी भी डेटा टाइप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ना रिटर्न कर सकते. जब भी कहेंगे when we will speak return data type. Return data and main is a primary function. Main क्या है हमारा? Primary function. String data type. Yes, sir. String data type. And args क्या है? Array argument. Array argument. अब क्या है? Here we are going to define. We are going to print a simple message, hello world. So write system is capital में, system dot out dot print ln. प्रिंट से क्या होता है क्लास, एंड प्रिंट एलएन से, प्रिंट से उसी लाइन में हो जाता है, जबकि एलएन लग गया तो ये नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगा. यस, सो हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हेलो पिट्स ब्रैकेट क्लोज. ये क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम जो जावा में हम लोग करते हैं. जावा में we can write a program in Java in a two modes. दो तरीके से जावा में प्रोग्राम हम लिख सकते हैं. फर्स्ट है
प्री डिफाइंड मोड और सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मोड में वी डू नॉट नीड ऑफ एनी पैकेज, किसी भी पैकेजेस की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड ऑफ एनी पैकेजेस, किसी भी पैकेजेस की जरूरत नहीं है इन जावा, ये प्री डिफाइंड। बट इफ वी विल टॉक अबाउट द यूजर डिफाइंड वी नीड ऑफ द पैकेज। यहाँ पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं, देखिए डू यू हैव नोट डाउन? Separate. कैन आई रेज? Separate. ऊपर का पे लिखिए। Yes, sir. सर कुछ क्वेश्चन है सर। यस पूछिए। सर लाइक व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर क्वालिफायर? ये थोड़ा हम बता देते हैं, बिल्कुल से मैं लिखवा भी देता हूँ, लिख लीजिए। Write down access specifier, access specifier, इसे हम लोग access modifier या control भी बोलते हैं। This working properly? Access specifier, it is also known as known as access control. It is also known as access control. It is also known as access control. Access control या access modifier. Access specifier, access specifier ensure, access specifier ensure the accessibility, ensure the accessibility in such a way, accessibility in such a way that, इस तरह से accessibility को डिफाइन करता है कि that programmer can access, that programmer can access member function, can access member function and member data by the help of public, private, protected, default and default within a class, and outside the class, within a class and outside the class. अब आपको क्लास यहाँ पे हर स्पेसिफायर का यानी हर एक्सेस स्पेसिफायर का अपना एक एक्सेसिबिलिटी रूल होता है। अगर हम एग्जांपल ले पब्लिक का,
तो पब्लिक एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसे आप क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज सच a specifier. It is such a specifier. It is such a specifier where we can access within a class within a class and outside the class। यानी कि एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसे हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको फर्दर फिर प्राइवेट क्या हो जाएगा, इसे हम सिर्फ क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, बाहर डिफाइन नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड क्या होगा, दैट विल बी चेंज, उसके भी पैटर्न यही हो जाते हैं। एंड सब में एक बात कॉमन है, किसी में क्लास के अंदर, किसी में क्लास के बाहर, कोई क्लास के अंदर और कोई क्लास के बाहर। यही रीजन है कि C++ हो, जावा हो या पाइथन प्रोग्रामिंग हो, सबसे पॉपुलर स्पेसिफायर कौन यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंटली। दैट मींस वी विल यूज द फ्रीक्वेंटली, यानी पब्लिक एक ऐसा स्पेसिफायर है जिसको हम मैक्सिमम टाइम्स यानी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। सर डिफॉल्ट का वैल्यू क्या जाएगा? डिफॉल्ट का वैल्यू अगर सर हम वहाँ पर लेते हैं लाइक डिफॉल्ट स्टैटिक वर्ड, डिफॉल्ट नहीं डिफाइन करेंगे, जरूरी नहीं है। वहाँ पे सिंपल डिफाइन कर देंगे ऐसे ही, पब्लिक ही डिफाइन करना है, स्टैटिक वर्ड में नहीं होगा, एक्सेस ही नहीं होगा। नहीं सर, आपने सर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट बिल्कुल सही आपने कहा। मान लीजिए प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक तो क्लियर है। स्टैटिक मैं अभी लिख के बता दे रहा हूँ। स्टैटिक वर्ड में void main string यहाँ पे क्या है क्लास, जो पब्लिक स्टैटिक void main string और आपने लिखना है, ये पब्लिक क्या स्पेसिफायर है। बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया सर, क्या पे हैं हम, जब आप सब स्पेसिफायर बता रहे हैं तो प्राइवेट क्यों नहीं लिखेंगे? तो मैं यही जवाब दूंगा कि प्राइवेट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्राइवेट का मतलब क्लास के अंदर, क्लास के बाहर आप नहीं इसको यूज कर सकते, वाला प्रॉब्लम मेरे आ जाएगा। अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें, प्रोटेक्टेड क्या करता है, मेंबर डेटा को रिजर्व कर देता है, तो प्रोटेक्ट भी यूज नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट क्या करता है, मेंबर डेटा को रिजर्व कर देता है, यानी आप उसको कॉलिंग करना चाहेंगे तो कॉल हो सकता है क्या, नहीं होगा प्रोटेक्टेड। एक रीजन ये भी है। डिफॉल्ट वो अपने तरीके से वैल्यू डिफाइन कर देगा, कुछ भी दे सकता है जो उसकी लाइब्रेरी पड़ा हुआ, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। कभी वो प्रोटेक्टेड दे सकते हैं, कहीं प्राइवेट दे सकते हैं, कहीं पब्लिक है। जब भी हम मेन डिफाइन करते हैं तो पब्लिकली डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारी मेंबर डेटा खुद नहीं पता है कि कब मेथड के अंदर करेंगे कि मेथड के बाहर करेंगे, वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर है ना। जो प्रोग्रामर है किसी बाउंडिंग में नहीं चलता है, जब वो कोडिंग करने बैठता है तो उसको सीधा पता है कि मुझे कोडिंग करना है, तो हमें कौन सा ऐसा कीवर्ड्स लेना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो सब जगह एक्सेस हो, तो क्या कीवर्ड लेंगे, पब्लिक यूज। क्लियर है? अब राइट नाउ सर एक्सेस क्वालिफायर, access qualifier, access qualifier, access qualifier, access qualifier, access qualifier, it ensure access qualifier, it ensure
It ensure a static function. It ensure क्या इंश्योर करता है स्टैटिक फंक्शन को, क्या इंश्योर करता है स्टैटिक फंक्शन। तो स्टैटिक फंक्शन आपको जानना पड़ेगा, स्टैटिक फंक्शन होता है क्या है, सी प्लस प्लस की शायद आपने पढ़ा होगा, याद है, यू हैव रिमेंबर स्टैटिक फंक्शन। तो फिर इट इंश्योर स्टैटिक फंक्शंस इन सच अ वे, in such a way that we can call the member data and member functions. We can call the member data and member functions. स्टैटिक फंक्शन के कारण ही आप क्या कर सकते हैं, मेंबर डेटा मेंबर फंक्शंस को कॉल कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन यूजर काम कर रहा है, स्टैटिक। और कुछ भी है सर यहाँ पे स्टैटिक और भी हो सकता है, एक्सेस क्वालिफायर, क्या क्या सर एक्सेस मॉडिफायर में यहाँ पे हमने यूज किया था पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट। सर स्टैटिक की जगह पे क्या चाहते हैं, इसकी जो और भी इसका टाइप होगा नहीं, बस एक ही है आप फिक्स। अब है void लिखवाने की जरूरत है, ये जानते हैं, मेन नो सर, स्ट्रिंग नो सर, एरे आर्गुमेंट तो जानते ही हैं सर हल्का सा एरे आर्गुमेंट, एरे आप जानते होंगे बट एक बार इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा। एरे हमारा किस तरह का डेटा टाइप, सर ये बेसिक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, डिराइव्ड डेटा टाइप है। सर डिराइव्ड डेटा, बिल्कुल राइट नाउ यू आर इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, डिराइव्ड डेटा टाइप। मुझे लग रहा था कि आप बेसिक डेटा टाइप बोलेंगे, बिल्कुल सही आपने कहा, डिराइव्ड डेटा टाइप। क्यों, आखिर व्हाई वी नीड ऑफ द एरे, एरे की जरूरत क्यों है? सर जब मुझे एक ही टाइप का वैल्यू यूजर से लेना हो कंटीन्यूअस, लाइक इंटीजर मुझे मार्क्स एंटर करानी हो 10, या कोई एक ही टाइप का डेटा टाइप मुझे चाहिए बार बार, जैसे स्टूडेंट कहने से स्टूडेंट एमसीए भी हो सकता है, स्टूडेंट बीटेक भी हो सकता है, स्टूडेंट बीसीए भी हो सकता है, स्टूडेंट आर्ट्स भी हो सकता है, हाँ एमटेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट क्या है, एक सिमिलर वर्ड है, तो हम एरे को कर सकते हैं। Array, the word array is derived from the arrangement, which means that collection of similar similar value को collection करता है कि नहीं करता है। I think array का same pattern। अब आप कहेंगे सर लेकिन जावा में arrays को यहाँ पे याद रखिएगा, यह आर्गुमेंट है, array नहीं। Sometimes यह आर्गुमेंट कह रहे कि यहाँ पे स्ट्रिंग को भी array बना देते हैं। यस सर, हाउ ड्रॉ ये डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। जैसे बेसिकली स्टैंडर्ड क्या है, अर्ग्स के बाद ये पैरेंथेसिस देते हैं, लेकिन समटाइम्स प्रोग्राम में हमें जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सर सब सिचुएशन कब आता होगा, जब ऐसा कोडिंग आता है। जैसे कि आज मैं बता ही रहा था नेक्स्ट प्रीवियस बैच को, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम चेक करना था, ग्रेटर देन लेस देन, जावा में 0 और 1 नहीं देता है, सी प्लस प्लस पाइथन जो भी उसमें क्या देता है 0 1, यही ट्रू देता है ना, फॉल्स का, इसमें ट्रू एंड फॉल्स, और जावा में ट्रू एंड फॉल्स, TRUE ट्रू लिखता है और फॉल्स करके लिखता है, 0 1 नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं जावा ये रीजन है, टॉक्स का पैरामीटर यहाँ डिफाइन करके ये सब चीज आएंगी, ये सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पार्ट है। जब कोडिंग करने के लिए आप स्टार्ट करेंगे यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ओके, अब हम राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट इन जावा, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में।
कैन आई रेस, आपने लिख लिया था यस सर, विकास। यस सर। Input and output user. Input या output in जावा में इनपुट और आउटपुट को यूज करने के लिए if you want to use of the input and output in Java we need of the package। हमें किस चीज की जरूरत है? पैकेज की जरूरत है। विदाउट पैकेज we cannot perform input and output operation in Java। कैसे? राइट डाउन in Java we need of package such as java.lang कौन से पैकेज की जरूरत है? lang। कॉमा जरूरी नहीं है कि एक ही पैकेज हो। जावा में आयो पैकेज से भी कॉलिंग करा सकते हैं, इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। java.lang java.io एंड यानी कि क्लास हम लोग java.lang पैकेज और java.io इस दोनों से हम लोग इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का परफॉर्मेंस चाहते हैं। राइट नाउ प्रोग्रामर चाहता है कि कोडिंग को स्मार्ट तरीके से वर्क करे, तो मैक्सिमम ट्रेंडिंग में वी कैन से राइट नाउ इन ट्रेंडिंग वी आर यूजिंग ऑफ java.lang व्हिच पैकेज? java.lang पैकेज। कैसे? लुक एट द बोर्ड, कैसे कॉल करते हैं एक कोडिंग से समझते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कोडिंग वी विल अंडरस्टैंड pix.java import java.util dot scanner we must define of this package। हमें एक कीवर्ड्स है ये डिफाइन करना होगा। जावा में इनपुट आउटपुट करना आसान। इज दिस वर्किंग प्रॉपर्ली? यस सर। So we need of the import java.util.scanner। नेक्स्ट import एक क्लास नेम है, मैं डिफाइन करूंगा जिससे क्लास नेम और पैकेज नेम क्या होगा। import java.lang ऐसे लिखना जरूरी है। import java.util.scanner import java.lang.string। एक बार कोडिंग कर देते हैं, फिर सब लाइन वाइज एक करके तोड़ के बता देते हैं। ओके, फर्स्ट राइट डाउन लिखते चलिए विकास। क्लास पिक्स ओपनिंग ब्रैसेस पब्लिक static void public static void main string public static void main string args public static void main string args। अच्छा, क्लास जैसा पैकेज यूज करते हैं वैसा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना पड़ता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम सुने आपने? यस सर। क्या होता है? सर एक्चुअली जब हम लोग कोई गलत वैल्यू पुट करते हैं ना, तो उसकी जगह में क्या आउटपुट आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग अगर आयो पैकेज यूज करते हैं तो वी नीड यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा
we must define public static void mail string throws IO exception. बट हमें उतना मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ट्रेंडिंग में चलता है वही यूज करना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली है, तो मैं अभी पहले डिस्कस करूँ फिर करते हैं। java.lang एंड java.io दोनों अलग-अलग पैकेज, दोनों में कोई खास अंतर है। इसमें java.lang में डिफाइनिंग कम करना पड़ता है और java.io में डिफाइनिंग ज़्यादा करना पड़ता है। सबसे बड़ा डिफरेंस सिक्योरिटी के मामले में दोनों सिक्योरिटी तो सेम है। सिक्योरिटी में क्या है, इसमें जैसे आप देखिए आज आ गया इनपुट जो है, आप देखते होंगे बायोमेट्रिक सिस्टम का इनपुट आ गया है, बोर्ड पे लिख रहे हैं राइट नाउ, हो सकता है 2050 तक बोर्ड जो वाकई जब मेरा हाथ ही ऐसे ऐसे लिखते चला, आप यू विल सी इन द बॉलीवुड मूवी, आप देखते होंगे फिंगर से लिखते इनपुट देता है, अपना होते चला जाता है। यस या नो? क्या है समझिए, आईओ पैकेज क्या था, ट्रेंडिंग बहुत पुराने, दैट मींस एक सिस्टमैटिक है, काफी पुराना है, बट ट्रेंडिंग में भी java.lang आ चुका है। जो ट्रेंडिंग में उसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args, but here we must create the object of the scanning force. Write down a scanner SC, a scanner SC equal to new scanner system, new scanner system dot, we must define करेंगे क्या है SC, क्या है विकास, सिस्टम वेरिएबल, काम उखाड़ लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है SC, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है जावा में, न्यू ऑपरेटर। न्यू क्या है हमारा ऑपरेटर, सब मुझे लिखना पड़ेगा। राइट डाउन, स्कैनर क्या है क्लास में, ये लगा के आपको पता होगा। SC क्या है ऑब्जेक्ट नेम, विकास राइट डाउन ऑब्जेक्ट नेम। न्यू क्या है ऑपरेटर, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, लुक एट एंड देन वी विल डिफाइन द डेटा टाइप। इंट, हम दो नंबर का सम करने जा रहे हैं, सिंपल इनपुट आउटपुट। जावा में इतना आसान नहीं होता, बट वी विल डू fn, दैट मींस फर्स्ट नंबर, sn second number, and this can we write or not write? yes sir. And system dot out dot println enter any फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर नहीं, यूजर आपको यूजर का मन करेगा 10 देगा तो 10 नहीं दे सकता है, लेकिन देगा तो पहले वाले में एक ही नंबर आना चाहिए, कुछ भी दे। इंटर एनी, तो एनी लिख देने से क्या होगा, कुछ भी नंबर दे सकता है। इंटर एनी फर्स्ट नंबर। एंड हियर जैसे हम लोग C++ यूज करते, स्कैनफ करते थे, यहाँ पे वो नहीं। हियर वी विल राइट, क्या लिखेंगे क्लास, fn is equal to sc dot next int। सर हम इंट की जगह और भी तो कुछ ले सकते हैं। नहीं, इंटीजर वैल्यू जैसा डेटा टाइप वैसा ही ना वैल्यू। इन सी में ऑलरेडी यू नो अबाउट %d। यस सर। Why we will define %d? Because we have defined the data type integer, so we must define the %d. Yes or no? In Java, similarly we must define, if we define of the variables, that is scanner is equal to new scanner system.in, and here we have taken the data type int, that is the fn, then that will be defined by the method name. सर वहाँ पर हम डेटा टाइप इंट की जगह फ्लोट रख लें, So यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएंगे, floating, next float. That means as in accordance with your data type, you must define the method name. Java में इतना आसान नहीं है इनपुट आउटपुट लेना। दो नंबर का सम के लिए देखिए इतनी कहानी लिखनी पड़ेगी।
we must define. Then system dot out dot print ln enter any second number, कुछ भी नंबर दिया जा सकता है यूजर्स। कल से आप टुमारो यू विल स्टार्ट राइट द कोड, आप कोडिंग करना कल से स्टार्ट करेंगे। विकास जावा में कोडिंग कल से स्टार्ट, अब इतना मैं कैप्चर कर दिया हूं कि आप थोड़ा समझ गए होंगे। कल मैं डेटा टाइप्स, टुमारो विल डिस्कस द जावा ऑपरेटर्स, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एसएन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट और इनके बीच में स्पेस नहीं होगा, आई क्या होना चाहिए ऑलवेज कैपिटल। नेक्स्ट इंट ओपनिंग ब्रैसेस क्या है, एक फॉर्मूला। सोचिए, यू कैन सरप्राइज कि सर बाकी प्रोग्रामिंग से जावा ऐसा है क्यों, विचार कीजिएगा। बहुत ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है, एक सिंपल इनपुट आउटपुट के लिए भी इतनी डिफाइन करने की जरूरत क्यों, व्हाई वी नीड टू डिफाइन दिस लाइन ऑफ कोड्स, इतने डिफाइन करने की जरूरत है। अब कितने को याद होगा पैकेज नेम, कितने को ध्यान में होगा क्लास नेम, फिर क्लास पैकेज डिफाइन दे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो क्रिएट करना है तो मेथड क्या क्रिएट करना है। यानी कि सिंपल दैट मींस वी कैन से इन अ सिंपल वर्ड इक्विवेलेंट स्पीच, तो वी मस्ट keep in your mind class name, is this working properly, class name, package name, method name, object, etc. Then you can perform analysis. Yes or no? Of course we can do. Right now एक प्रोग्राम देते हैं। Right now we are going to theory assignment and lab assignment. Write down. Can I erase? Yes sir. देखिए, आप मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स डिग्री वाले को मैक्सिमम काम खुद से ही करना चाहिए। तो सोचिए कि इस पे क्या हो सकता है, सोचिए कि मनन कीजिए, बिकॉज कैसे इस पे आउट हो सकते हैं इनपुट आउटपुट, क्या अगर हम यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं तो क्या हो सकता है जावा में, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट नाउ लिखिए असाइनमेंट, फर्स्ट थियरी असाइनमेंट्स, देन पहले प्रैक्टिकल असाइनमेंट देता हूं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा। मैं ऐसा कर रहा हूं, क्लास दो टाइप का कैटेगराइज कर देता हूं, फर्स्ट थियरी असाइनमेंट का और देन लैब असाइनमेंट का, सही रहेगा। और कल से आपको दोनों करना है। थियरी असाइनमेंट सबमिट, आपको पता है कि आईटी का आदमी हमेशा डेडलाइन से चलता है, तो आपको भी इस डेडलाइन को समझना होगा। थ्योरी असाइनमेंट सबमिट बिफोर सर रात में 8:30 सबमिट कर 8 PM। सर नो सर 9 PM सर। 9 PM? यस सर। कंफर्म? हां सर। टुडे? यस सर टुडे। देन लैब असाइनमेंट ये प्रैक्टिकली कंपाइल करा के रन करा के आपको स्क्रीनशॉट के साथ 10 PM। नो लैब असाइनमेंट टुमारो सर विथ डॉक्यूमेंट्स विथ कंपाइल, हाँ सोर्स कोड कंपाइल के साथ, ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट नहीं। लैब असाइनमेंट सबमिट, लैब असाइनमेंट सबमिट बिफोर कितना 10 PM? 10 PM। चलिए 1 घंटा कोडिंग करना चाहिए नहीं? 10 PM टुडे, देखिए टुडे है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन एक्सप्लेन जावा कीवर्ड्स, जावा फर्स्ट। क्वेश्चन 2 10 क्वेश्चन दे दे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। What is public? What is third? Private?
What is private? What is protected? What is protected? What is default? मतलब ये सब जावा में समझ लीजिएगा ना. What is public in Java? What is private in Java? मैं लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप सर हो गया सर. What is public in Java? What is private in Java? What is default? What is default in Java? Yes or no? That means here we have written question 6. What is access specifier? What is access specifier? What is access specifier? What is access qualifier? What is access qualifier? What is static? 10 तो हो ही जाएंगे तो हमारे हाथ में. What is static? Explain the package. Explain the packages. Explain the packages in Java. Explain the packages in Java. Java में इतने सारे पैकेजेस हैं उसके बारे में डिपेंड करना. But look at level. Write a program P1. Write a program. Write a program in Java. Write a program in Java. For write a program in Java using user input. Users input लेते हुए. Using user input. सर Yes. बीच में सर एक प्रॉब्लम हो गया. क्या? सर आपने 6 नंबर लिखा है नहीं सर. अच्छा तो बढ़ा देते हैं. एक और नंबर हो जाएगा. अच्छी सर. 6 सर 7. हाँ बोलिए. एक मेरा वेबिनार है, मैं हेडफोन यूज कर सकता हूँ? क्या? एक मेरा वेबिनार है, सो मैं हेडफोन यूज करूँ? बस 5 मिनट्स हो गए. 3 मिनट्स. Write a program in Java using user input. Using input from user. Using input from user for arithmetical operator. हो जाएंगे कि नहीं विकास कुमार? यस सर. P2, write a program in Java. Write a program in Java. Write a program in Java using input from